Hello dear friends, I Dr. Shamsher Singh today welcome you all on my channel, and today I am going to discuss about the diabetes and how you can manage the diabetes. Now why we discuss about the diabetes? Because it is the leading cause of mortality and it is the major problem through which many of the populations they are suffering. तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज़ क्या है. डायबिटीज़ इज़ ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. So it means whenever your metabolism is disordered, मतलब कि आप अपना खाना पीना रहना चलना सब चेंज कर दें तो आपको आने वाले टाइम पे डायबिटीज़ हो सकता है. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड कंट्रीज including some of the Asia Pacific countries, they are more suffering. The reason because they are taking a high fat diet or they are taking a such type of unsaturated fatty acid which are too harmful for our body. So why they are too harmful? क्योंकि अगर आप continuously fried diet जहाँ आप unsaturated fatty acid यूज़ करते हैं तो आपकी बॉडी में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बढ़ती हैं. क्यों? क्योंकि जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल है दे आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फैट मॉलिक्यूल एंड दीज स्मॉल फैट मॉलिक्यूल आइदर दे आर प्रोसेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए कीटोन बॉडीज और आइदर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स बिकॉज देयर आर टू टाइप ऑफ फ्री रेडिकल्स विच आर कॉमनली नोन. तो ये दो तरह के होते हैं. वन इज कॉल्ड एज ए reactive oxygen species, another is called as a reactive nitrogen species. So as you know that these are the species which are related to oxygen and these are the species which are related to nitrogen. So that means if they are related to nitrogen, these species are formed from the amino acids, abnormal metabolism of proteins. So if there is a oxygenated species, that means they are due to oxidation of fat, they are due to oxidation of your lipids. That's why there is a increase in the level of lipid peroxidation. So lipid peroxidation वो प्रोसेस होता है जबकि आपकी बॉडी में आप ज़्यादा लिपिड ले रहे हैं तो आपके लिपिड डिग्रेड होते हैं जिससे ऐसी चीज़ें आपकी बॉडी में बनती हैं और जब आपकी एज बढ़ेगी तो आपकी बॉडी जो है इनको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगी. क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का उस टाइम पे एंटीऑक्सीडेंट लेवल कम हो जाता है. सो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट है देयर लेवल इज रिड्यूस्ड विद इंक्रीज इन द एज. दैट्स व्हाई द पॉपुलेशन which are having age above than 45-50 they commonly suffer from the diabetes. So dear friends, I will discuss with you that how you can control your diabetes. तो आप अपनी डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और आप कैसे मैनेज कर सकते हैं आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करता हूँ. सो डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो मैंने आपको बता दिया है कि रिलेटेड टू हाइपरग्लाइसीमिया है, ग्लाइकोयूरिया, लिपिडीमिया एंड कीटोन बॉडी फॉर्मेशन है. आफ्टर देन देर इज ए 4 टाइप ऑफ डायबिटीज. जस्ट आई विल डिस्कस विद यू. वी से टाइप 1 और इंसुलिन डिपेंडेंट और juvenile onset mean it affect to small children's, or second is called as a type 2 also called as a non insulin dependent or adult onset. It mean it affects to the adult more. Third type of gestational diabetes, the diabetes which affect to the pregnant women. So that mean this can be due to some hormonal or other changes. Now the fourth type of diabetes is called as a pre-diabetic
or normodiabetic. So what we can say normodiabetic? Normodiabetic mean आप तो नॉर्मल हैं बट जो आपका ग्लूकोज लेवल है दैट रिजाइड्स वो आपका रहता है 140 mg पर डेसीलीटर 150 mg पर डेसीलीटर बट यू आर नॉट येट डायबिटिक. So that's why dear friends it is important that you should not be a normodiabetic. So once you will become a pre-diabetic or a normodiabetic, you can easily become a type 2 diabetic patient. So that's why the sustained hyperglycemia for 2 to 3 months or for more than 4 weeks can leads to reason of diabetes. So there is another that what are the risk factor for the diabetes. तो जिन लोगों को डायबिटीज होता है क्या अगर माँ बाप को डायबिटिक है तो बच्चों को भी होने के चांसेस होते हैं. यस देयर इज ए यू कैन से इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैमिली हिस्ट्री. तो फैमिली हिस्ट्री में ऐसा रहता है क्यों? क्योंकि दीज जीन्स दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मदर टू ऑफस्प्रिंग. माइट बी देयर इज ए मोर चांस आइदर द मेल कैन बिकम डायबिटिक और फीमेल मे बिकम डायबिटिक. तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो किसी के माँ बाप को डायबिटीज है तो जो उनकी संतान है उनको अपनी बॉडी को मेंटेन करना चाहिए और लिमिट में शुगर इनटेक करना चाहिए और अपना बॉडी वेट भी मेंटेन करना चाहिए. क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं फ्रॉम द डायबिटीज. तो दिस इज इनहेरिटेबल. इनहेरिटेबल मीन ट्रांसफर फ्रॉम द वन जनरेशन टू द सेकंड जनरेशन. द सेकंड थिंग इज कॉल्ड एज ए इंजरी टू पेनक्रियास. तो अगर किसी के पेनक्रियास को इंजरी हो जाए जहाँ पेनक्रियास को कैंसर हो जाए तो उस केस में हमारी बॉडी में ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. सो थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज. कहने का मतलब कि आप एलर्जिक हैं और आपकी बॉडी में हर टाइम एंटीबॉडीज जो हैं वो ब्लड में रहती हैं. सो दैट मीन यू आर प्रोन टू बिकम मोर सेंसिटिव टूवर्ड एलर्जी. तो अगर आप ज़्यादा सेंसिटिव हैं टूवर्ड एलर्जी तो बी केयरफुल अबाउट दैट. यू कैन सफ़र फ्रॉम टाइप 1 डायबिटीज. नो नेक्स्ट इज कॉल्ड एज ए फिजिकल स्ट्रेस. नो स्ट्रेस मीन रिलेटेड टू एनीथिंग. आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे स्ट्रेस है. आप कोई अपना पर्सनल बिजनेस करते हैं वहाँ पे लॉस हो रहा है उसकी स्ट्रेस है. जहाँ कोई आपको और स्ट्रेस है. तो डियर फ्रेंड्स स्ट्रेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू चेंज इन द कॉर्टिकोस्टेरॉल लेवल. तो जो आपका कॉर्टिसोल लेवल है वो बढ़ता है और उसके बढ़ने से एक साइड वाइज जो है वो सोडियम वाटर रिटेंशन करता है जिससे लोगों को एडिमा होता है और दिस इज आल्सो सीन इन सम किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम. और अगर दूसरी बात मैं करूं कि ये जो कॉर्टिसोल है जब इनका लेवल बढ़ता है तो दे इंक्रीज द ग्लूकोज रिटेंशन. ये ग्लूकोज का बॉडी में रिटेंशन बढ़ाते हैं जिससे उस पेशेंट को डायबिटिक के सिम्टम्स आते हैं. सो दैट मीन अगर आप स्ट्रेस फ्री रहना चाहें या आप अपनी स्ट्रेस को रिड्यूस करें तो दिस विल बिकम मोर बेनिफिशियल फॉर यू. नेक्स्ट इज एक्सपोजर टू इलनेस लाइक वायरसेस. तो अगर आपकी बॉडी में कोई वायरल अटैक आया और उस वायरस के अगेंस्ट आपकी बॉडी ने कोई एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की, उन एंटीबॉडी ने आपके पेनक्रियास को डैमेज किया जहाँ कोई और एलर्जिक रिएक्शन की. सो दीज आर द कॉमन रिस्क फैक्टर विच आर एसोसिएटेड विद द टाइप 1 diabetes. Now, what are the factors which are associated with type 2? Now, in case of type 2 diabetes, if you are overweight or obese, so it mean very simply you should know your you can say basal metabolic index BMI. So आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे हाइट के अकॉर्डिंग मेरा कितना वेट चाहिए so that I will lie with a very good limit of BMI that will be around 20-22 nearby but not more than 25-26 so that you can understand
that if my BMI will be good, my body weight will not be increase. Now dear friends, मैं आपको आने वाले जो स्लाइड्स हैं उसमें ये बताऊंगा कि how you can control your body weight, and if you will control your body weight, how you can manage your diabetes status. Now second thing is called as a cigarette smoking. So whenever a person do cigarette smoking, the cigarette smoking contain a number of constituents like nicotine or some others. So these constituents, they are responsible for increase in the ROS level in your body. तो ज़्यादा सिगरेट पीने से आपकी बॉडी में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का लेवल भी बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है आपको डायबिटीज के चांसेस बढ़ सकते हैं। और सेकंड, अगर आप ऑलरेडी यू आर सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, आपकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी है कि आपकी फैमिली में नॉर्मल से ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है, नॉर्मली इट शुड बी नियरली 125 30 130 सिस्टोलिक एंड 80 to 85 विल बी डायस्टोलिक। तो इफ़ आपका बीपी बड़ा रहता है तो कहने का मतलब है देन यू कैन लिंक विद दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, और बोथ कैन लीड्स टू any major problem in your body. No, next is low HDL and high LDL, VLDL as well as triglyceride in your body. So dear friend, this is called as a good fat, good cholesterol. क्यों HDL को good cholesterol कहते हैं? Because it carry the bad fat from your blood toward liver side with the help of chylomicrons, so that your bad fat can be degraded and it can be eliminated out from your body. तो इसलिए हम क्या करते हैं, HDL को गुड फैट मानते हैं, जिसको कि आप लेके चलें कि आपका बॉडी में इसका लेवल अच्छा होना चाहिए, सो दैट यू विल नॉट सफ़र फ्रॉम दी हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल और यू कैन नॉट सफ़र फ्रॉम दी ओबेसिटी लाइक प्रॉब्लम। सो फिजिकली इनएक्टिव, अगर आप खाना खा रहे हैं, वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो दैट मीन दिस कैन इंक्रीज योर बॉडी वेट, एंड इंक्रीज बॉडी वेट कैन बी लिंक्ड टू टाइप 2 डायबिटीज। नाउ another is called as age. So age always plays a major role, because whenever you will say if you are having a age of adult, that mean approximately you are 25 to 40 nearly, and at this age level your body is having a good antioxidant level. तो आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट बनते हैं और उनका लेवल भी अच्छा होता है, जिससे आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन मिलता है। बट whenever your age will be above than 45 and it can lead to 60 70 like that, now there is a reduced level of antioxidant in your body, and that can leads to complication or any problem like a diabetes. So another is called as a gestational. Now this gestational diabetes is related to the hormonal change in the body of pregnant women. अब dear friends, अगर किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को ये प्रॉब्लम है गैस्टेशनल डायबिटीज़ का, तो उस केस में अनटिल अनलेस ये नहीं होना चाहिए कि दैट विल अफेक्ट टू द बेबी, सो दैट अगर बेबी के केस में अगर देखें तो मोस्ट प्रोबेबली जो वुमेन डायबिटिक होती हैं और उनके जो बच्चे पैदा होते हैं, दे आर मोर फ्लफी, देयर वेट स्लाइटली बी मोर एज कंपेयर टू द नॉर्मल बेबी. सो दैट मीन दिस कुड बी ए वन ऑफ द प्रॉब्लम which will be related to that. Another having a life history of stroke. So these are all the things, they are mean link with each other. अगर आपकी बॉडी ओबीज है, आपका फैट लेवल ज़्यादा है, आप स्ट्रोक से भी सफ़र कर सकते हैं एंड आपको डायबिटीज़ भी साथ में है, तो इट मीन इट कैन गिव ओरिजन और बर्थ टू ए मेजर कॉम्प्लिकेशन इन योर बॉडी विच कैन बी a cardiac problem or a renal problem. So dear friends, what are the symptoms? अगर किसी को डायबिटीज़ है तो कैसे पता चलता है? फर्स्ट है इंक्रीज थर्स्ट, आपको बार बार प्यास लगना. सेकेंड है वीकनेस एंड फैटीग,
आपकी बॉडी में हर टाइम वीकनेस रहना और फैटीग रहना, और यू थिंक कि मेरा दिल कर रहा है मैं बार बार सो जाऊं, सो ऐसा फैटीग आपकी बॉडी में रहना। नेक्स्ट है ब्लड विजन। सो मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि हाउ डायबिटीज लीड्स टू ब्लड विजन बाय कॉजिंग रेटिनोपैथी। तो आप फर्स्ट जो मेरा लेक्चर है उसको ज़रूर सुने और उससे आपको पता चलेगा कि हाउ यू कैन लिंक दैट लेक्चर विद दिस वन। सो नेक्स्ट इज नंबनेस और टिंगलिंग इन द हैंड। तो डियर फ्रेंड्स, जब भी कोई न्यूरोपैथी से सफ़र करता है तो न्यूरोपैथी इंडिकेट दैट पेरिफेरल न्यूरॉन डैमेज। तो उनके जो पेरिफेरी में न्यूरॉन्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं ना। उस डैमेज होने से क्या होता है, उनके यहाँ पे नंबनेस और टिंगलिंग। सो टिंगलिंग ऐसे साउंड सी उनको लगता है व्हेन एवर दे टच टू एनीथिंग, किसी चीज़ को पकड़ें, जहाँ उनको ऐसे देखें तो उनको ऐसे लग रहा है कि कोई ऐसा प्रिकिंग टाइप कुछ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये डायबिटीज़ के केस में होता है। डिले इन हीलिंग। तो डियर फ्रेंड्स, ये बहुत सिंपल है कि अगर आपको माइनर इंजरी हो जाए, जहाँ आपको कोई भी कट लग जाए, तो अगर आपका जो कट है वो हील नहीं हो रहा, दैट मीन आपका हीलिंग जो है वो डिले है, तो ये लगा के चलें कि आप डायबिटीज से सफ़र कर रहे हैं और डायबिटिक आपकी बॉडी में ग्रोथ फैक्टर्स को जो है फॉर्मेशन नहीं होने दे रहा। सो दैट मीन देयर आर सम ग्रोथ फैक्टर विच आर कॉल्ड एज ए नर्व ग्रोथ फैक्टर, विच आर कॉल्ड एज ए बोन ड्राइव ग्रोथ फैक्टर। तो ये जो आपकी बॉडी में फैक्टर्स होते हैं, इनकी फॉर्मेशन और सिंथेसिस वो कम हो जाती है। दैट्स वाई आपका जो वॉन्ड है उसके हीलिंग में टाइम लगता है। नाउ देयर विल बी ए सस्टेन्ड बॉडी वेट लॉस। तो आपने कभी सोचा होगा कि ग्लूकोज तो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, बट इवन दो बॉडी इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग दैट ग्लूकोज, आपका सेल उसको पहचान नहीं पा रहा, इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, और उस केस में क्या हो रहा है कि आपका फैट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इन द ग्लूकोज। तो वो जो फैट लॉस है आपका, दैट इज responsible for the sustained weight loss. Frequent urination, तो ये है ड्यू टू हाइपर ऑसमोलैरिटी बाय द सल्यूट लाइक ग्लूकोज। तो आपका यूरिनेशन जो है बढ़ जाता है। और नेक्स्ट आ जाता है ड्राई माउथ, आपका माउथ ड्राई रहना। दीज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ द डायबिटीज। नो कमिंग टू द लेबोरेटरी एनालिसिस, अगर आप इफ़ यू कंसल्ट टू एनी डॉक्टर, आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं तो आप वहाँ पे किस किस टाइप के टेस्ट करवा सकते हैं which will be useful to predict whether you are suffering from diabetes or not। तो इस केस में आप ये देखें कि आपका फास्टिंग ग्लूकोज लेवल कितना है। इफ़ योर फास्टिंग ग्लूकोज लेवल इज 80, 70, 90 और लेस देन 100 देन नो प्रॉब्लम, बट इफ इट विल गो अबव देन 120, 125, फास्टिंग मीन खाने से पहले, तो सुबह मॉर्निंग के टाइम पे, तो अगर इससे आपका बढ़ता है तो ये लगा के चलें कि आप डायबिटिक स्टेज से सफ़र कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज ए रैंडम ग्लूकोज टेस्ट। तो डियर फ्रेंड्स, रैंडम कहा जाता है कभी भी करो। आप आपने खाना खाया, आधे घंटे बाद कर लिया, 3 घंटे बाद कर लिया, 4 बार, तो रैंडम किया आपने रैंडमली। तो रैंडमली इफ योर ग्लूकोज लेवल इज 140 to 160, दैट मीन इट इज़ ए गुड लिमिट। क्यों? क्योंकि आपने खाना भी खाया और खाने के बाद आपने अगर कोई स्वीट्स खाई हैं तो उससे आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है। बट इफ इट विल गो अबव देन 180, देन यू विल से you are diabetic. Now third thing is called as HbA1c. So this is called as a glycated hemoglobin. That mean the hemoglobin which is rich with the glycated glycogen, so glucose. So that mean if your level is below than 5.7% or near to 5 to 6 around, then you can say we are at the border range and we are not suffering from diabetes. But if it will go above than 6, 6.5, 7 like that,
then you are diabetic. So likely you should check this level of this HbA1c. Next is called as oral glucose tolerance test. That mean whenever we administer orally, हम किसी को ग्लूकोज खिलाएं तो हमें देखना होगा कि उसका टॉलरेंस कितना है। तो अगर आपका टॉलरेंस लिमिट जो है 180 mg पर डेसीलीटर में जा रहा है तो इसका मतलब आप डायबिटिक हैं। क्यों? क्योंकि आपका टॉलरेंस 140 mg पर डेसीलीटर था। तो अगर आप लिमिट से बाहर जाते हैं तो टॉलरेंस नहीं है, दैट मीन यू आर सफरिंग फ्रॉम। बट इवन दो you should consult to your local doctor also. So next is called as C-peptide estimation. C-peptide is performed for whenever you want to see whether the insulin is released from the pancreas or not, because आपकी इंसुलिन जो है structurally it contain A and B chain. Now third chain is called as a C-peptide. So ये जो C-peptide है जब ये रिलीज होता है तो this is a marker that insulin is released in your body. Next is called as symptom basis. तो ये मैंने पहले आपको symptoms बताए। अगर आपको थर्स्ट लगता है, एक्सेसिव यूरिनेशन है, अगर आपको फैटीग रहता है, देन यू शुड डू दिस टाइप ऑफ द एनालिसिस टू कंफर्म कि आप डायबिटीज से सफ़र कर रहे हैं जहाँ कोई और प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज ए मैनेजमेंट। सो डियर फ्रेंड्स, कई बार ऐसे क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट कि क्या हमें एंटी डायबिटिक ड्रग पहले से लेना चाहिए। बट डियर फ्रेंड्स, इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन योर बॉडी। अगर आपने डिटेक्ट नहीं किया कभी बट आप लॉन्ग टाइम से डायबिटीज से सफ़र कर रहे थे, देन आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे माइट बी देर इज़ ए नीड ऑफ एंटी डायबिटिक एजेंट और देर इज़ ए नीड ऑफ इंसुलिन। बट अगर उसके बिना अगर आप प्री डायबिटिक हैं देन यू शुड डू दिस टाइप ऑफ द थिंग। आपको क्या खाना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको किस टाइप की डाइट लेनी चाहिए। वो डाइट जिसमें कि एक अच्छा कंसंट्रेशन हो कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का और मिनरल्स का। उसमें आपको वेजिटेबल, ग्रेन्स, बीन्स, फ्रूट, ये सारी चीज़ें, ऑल द थिंग्स यू शुड इंक्लूड। कहने का मतलब है कि आपको फ्रूट में क्या क्या लेना चाहिए, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। क्यों? क्योंकि कई बार डायबिटिक पेशेंट को ये पता नहीं चलता कि हमें कौन सा फ्रूट लेना है। तो आपको फ्रूट में रेड एप्पल, ब्लैकबेरी, ग्रेप्स, पोमीग्रेट, रेड कैबेज, कीवी फ्रूट, तो आपको ये लेना चाहिए बिकॉज दे डू नॉट कंटेन ए रिच कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। तो इसलिए ये पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। सेकंड आ जाता है बिटर। तो बिटर जो हैं दे आर टू यूजफुल। जैसे किसी को डायबिटीज़ है, अगर वो करेला का यूज़ पी सकता है बिकॉज इट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, आप ऑनलाइन चेक करें तो करेला का यूज़ आपको मिलेगा। नहीं है तो आप अगर इसको घर पे यूज़ करते हैं देन यू शुड यूज़ दिस पर्टिकुलरली। आप इसका जो आउटर कवरिंग है उसको उतार लें, उतारने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट बनाएं उसका। यू शुड कीप इट इन बॉयल वाटर और बॉयल वाटर से आप इसको सीव करके पी सकते हैं। सो दैट बट यू शुड नो व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन टू बी यूज। जैसे मार्केट में आता है तो उसका मैक्सिमम जैसे 4 से 5 ml डेली इनटेक है। सो आप उस चीज़ को जरूर देखें कि व्हाट इज़ द इंडिकेशन फॉर द इनटेक of this thing. Second आ जाता है नीम। So neem and Karela and Gilo, these three things which are having a, you can say, they reduce the level of glucose in your body, they reduce the oxidative stress and they improve the pancreatic activity, they improve your cellular activity. तो dear friends, ऐसी चीज़ें आपको लेनी चाहिए। So नीम का भी एक्सट्रैक्ट आप ले सकते हैं, पानी में आप नीम के लीव्स को डाल दो और यू कैन टेक 250 ग्राम और 500 ग्राम लीव इन 2 लीटर और 3 लीटर, कीप इट बॉयल, देन यू सीव इट, देन यू ड्रिंक अकॉर्डिंगली 3 to 4 to 5
ml during the morning time. So it will be very useful for you people. Not to eat, हमें क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा फ्रूट नहीं लेना चाहिए. So first is banana. तो आपको दोस्तों ये पता है कि ये जो बनाना है इसमें रिच होता है फैट. तो फैट तो हमें चाहिए नहीं क्योंकि ओबीस पॉपुलेशन सफ़र करता है डायबिटीज से. तो बनाना जो है वो आपको नहीं लेना चाहिए. सेकंड आ जाता है मैंगो. मैंगो भी आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए अगर आप डायबिटीज से सफ़र कर रहे हैं. उसके बाद कौन सी वेजिटेबल है, जैसे पोटैटोज, तो आपको पता है इसमें फैट भी होता है, एक्सेसिव ग्लूकोज भी होता है. तो आपको पोटैटोज नहीं लेना चाहिए और डायरेक्ट एज सच बॉयल फॉर्म में नहीं खाना चाहिए. उसके बाद आता है बीट रूट, जिसको आप चुकंदर बोलते हैं. तो बीट रूट में आपको पता है एक्सेसिव ग्लूकोज होता है. तो डियर फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यू पीपल दैट यू नेवर टेक सच टाइप ऑफ द थिंग्स विच डायरेक्टली इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन योर बॉडी. नेक्स्ट और कॉल्ड एज ए फास्ट फूड. तो फास्ट फूड को तो अपनी लाइफ में आपको बाय बाय करना चाहिए. क्यों? इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, आपको बर्गर, पिज्जा, स्पाइसी फूड, नॉन वेजिटेरियन इन एक्सेस अमाउंट आपको नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ऑल दे इंक्रीज द फैट, एंड फैट विच इज ए बैड फैट विच इज नॉट यूजफुल फॉर योर बॉडी. सो नेक्स्ट इज कॉल्ड टू अवॉइड अल्कोहल. आपको एक तो अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए, दूसरा ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए. बिकॉज ओवर ईटिंग जब भी होगी तो आप मैक्सिमम अल्कोहल के साथ ही करते हैं. सो दैट्स वाई अगर अल्कोहल को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो अल्कोहल आपकी बॉडी में अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और वहाँ पे ये नंबर ऑफ एल्डिहाइड रिलेटेड नाइट्रोजन स्पीसीज रिलीज करता है, जो कि आपके लिवर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है और आपके सेलुलर डैमेज करता है. तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए. डू दी एक्सरसाइज. और कौन सी एक्सरसाइज? एरोबिक एक्सरसाइज. एनारोबिक नहीं कि आप अपने रूम का डोर और विंडोज बंद कर दें और आप अंदर बैठ के एक डेढ़ घंटा एक्सरसाइज करें. नो. सो यू डू दी एक्सरसाइज आइदर इन द ओपन एनवायरमेंट और आइदर इन द रूम विच इज वेल वेंटिलेटेड. तो आपको वहां पे मैक्सिमम 30 मिनट और कैन इट बिकम 35-40 मिनट, नॉट मोर देन दैट. एट लीस्ट in a week, it will include a normal walk, it will include either swimming or it will include either jumping or enjoyment. तो आपको ये अपनी लाइफ में मॉर्निंग टाइम करें तो और भी अच्छा है, और इवनिंग करें तो देन इट विल आल्सो बी बेटर फॉर यू. तो आपको एक्सरसाइज ज़रूर परफॉर्म करनी चाहिए. क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज क्या करती है, आपका एक्स्ट्रा ग्लूकोज डिस्पोज करती है आपके मसल में. दूसरा क्या करती है, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन सेल्स में बढ़ा देती है. तो अगर आप देखें तो आपकी एक्सरसाइज वही काम कर रही है जो कि कुछ आपकी एंटी डायबिटिक ड्रग करती हैं. वो क्या करती हैं, आपका ग्लूकोज ब्लड से कहाँ ले जाती हैं, टिश्यू में, सो दैट इट कैन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए ग्लाइकोजन. दूसरा वो क्या करती हैं, दे इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ग्लूकोज. सो यू शुड डू एक्सरसाइज which will be beneficial for you people. Then you do the weight loss and food management. मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि अगर आपको हैबिट है कि you take a heavy food, then you take a food at a low amount. आप दिन में तीन टाइम की बजाय आप 5 टाइम ले लें तो then it is better. Then monitor your glucose. अगर आप एक्सरसाइज भी करते हैं, ये भी सारा कुछ ले रहे हैं, बट आपको ग्लूकोज और आपका बीपी आपको चेक करना चाहिए कि कहीं आपका ग्लूकोज बढ़ तो नहीं रहा. आपको ग्लूकोमीटर यूज करना चाहिए जहां. और उसके बाद आ जाता है कि इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी कॉम्प्लिकेशन तो आप अपने लोकल डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें. उसके बाद आ जाता है यू शुड टेक ए ग्रीन टी. मिनिमम 2 टाइम आपको सुबह शाम ग्रीन टी लेनी चाहिए. और हर्बल सप्लीमेंट लाइक क्वर्सिटिन, र्यूटिन, ये कैप्सूल फॉर्म में आते हैं, आप कंज्यूम कर सकते हैं आइदर मॉर्निंग, इवनिंग
इवनिंग और 1 कैप्सूल डेली बिकॉज दे आर टू सेफ फॉर द बॉडी। उसके बाद विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी, दे आर यूजफुल फॉर यू पीपल टू मैनेज दी डायबिटीज बिकॉज जो विटामिन सी डी है दे रिड्यूस द इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड इंक्रीज द इंसुलिन सेक्रीशन, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। देन अल्फा लाइपोइक एसिड, दिस इज also one of the multivitamin which is used यूजफुल इन टाइप 2 डायबिटीज, आपको ये भी देखना चाहिए। देन यू कैन टेक अलोए वीरा एक्सट्रैक्ट और ए कैप्सूल। तो जो मैंने आपको ये बताया अलोए वीरा आपके घरों पे भी होती है, इसको आप कंज्यूम कर सकते हैं, इससे आपकी डायबिटीज जो है वो मैनेज हो जाएगा। अगर आप किसी और सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन से सफ़र कर रहे हैं साथ में तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो लेक्चर है इसमें आपको डायबिटीज क्या है, कितनी टाइप की है, कैसे मैनेज कर सकते हैं, और ये जो मेरा चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू लेटर बेटर टू बेटर वीडियोस। सो थैंक यू वेरी मच।